وہ قادر حسن اس کی دعا اور اس کی آرزو روضہ رسول میں قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت اور اس کو بشارت دے دی. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. ہم سے جدا ہوئے ان بزرگوں سے پہلے عبدالقادر حسن صاحب سے ڈاکٹر اجاز قریشی صاحب ان کے صاحبزادے سعادت صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک بات جو بزرگوں نے بزرگوں کی ہو وہ ہم شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو عبدالقادر حسن صاحب کے لیے آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ والد صاحب کے لیے آج پھر بات کرنی پڑے. والد صاحب کو گزرے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکے، لیکن جتنا ان کے متعلق لکھا گیا ہے اور جتنا ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ ایک ہی بات کرتے تھے، ہمیشہ پازیٹیو کرتے تھے. انہوں نے بھٹو کے زمانے میں ضیاء الحق کے زمانے میں بہت ساری جیلیں کاٹی، لیکن کبھی مایوسی کی بات نہیں سنی. وہ ہمیشہ ہمارے بزنس میں بھی بڑے اتراؤ چڑھاؤ آتے رہے، لیکن ہمیشہ ہم جب بھی ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیشہ اس میں سے کوئی شر میں سے بھی خیر ہی نکالا. اور جس طرح وہ اپنا کاروان علم لے کے چل رہے تھے، جس طرح انہوں نے اسٹوڈنٹس کی مدد کی، وہ بھی اتنا قابل یقین بات کیا کہ جس طرح وہ اکیلے اس کو لے کے چلتے رہے اور شامی صاحب ان کے ساتھ رہے اور چلتے. ہم شاید ان کے الف تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہم جتنی مرضی محنت کر لیں. اب مجھے جانے کے بعد ان کے احساس ہوا، جیسے اطہر بھائی نے کہا کہ ان کے اپنے والد کے جانے کے بعد پتہ لگا انہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے والد کے جانے کے بعد پتہ لگا کہ کتنے عظیم آدمی تھے. کیونکہ والد تو والد ہی ہوتے ہیں، ہم ان کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں اور باہر والے لوگ ان کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. تو ان کا خلا ہمیشہ رہے گا اور ہم میں سے شاید کوئی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بڑے لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رول کیسے ادا کرنا ہے. ہمارے دوست بھائی عزیر احمد صاحب بھائی کے ساتھ ساتھ شاعر ادیب بھی، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے انور کدوایی صاحب کے بارے میں، وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یاد بہت آتے ہیں انور کدوایی، یاد بہت ہیں آتے انور کدوایی، کاش ابھی نہ جاتے انور کدوایی. یاد بہت ہیں آتے انور کدوایی، کاش ابھی نہ جاتے انور کدوایی. ان کی خاطر ہر ایک دل ہے افسردہ، ان کی خاطر ہر ایک دل ہے افسردہ، ہر ایک کو تھے بھاتے انور کدوایی. سچ لکھو اور سچ کا ساتھ ہمیشہ دو، سچ لکھو اور سچ کا ساتھ ہمیشہ دو، اکثر یہ فرماتے انور کدوایی. سنجیدہ تھے لیکن بزم یارہ میں، سنجیدہ تھے لیکن بزم یارہ میں، سب کو خوب ہنساتے انور کدوایی. مثبت سوچ کے حامل تھے 100 کالم میں، مثبت سوچ کے حامل تھے 100 کالم میں، اچھے خواب دکھاتے انور کدوایی. منظر میں پس منظر قاری دیکھ سکے، منظر میں پس منظر قاری دیکھ سکے، ایسا نقش دکھاتے انور کدوایی. باتیں کیا تھیں وہ تو اپنے لفظوں میں، باتیں کیا تھیں وہ تو اپنے لفظوں میں، 100 پھول کھلاتے انور کدوایی. یاد بہت ہیں آتے انور کدوایی، کاش ابھی نہ جاتے انور کدوایی. ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا عمران یعقوب صاحب سے کہ وہ اس کو ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور کدوایی صاحب سے میرا پہلا تعارف 88 میں طارق اسماعیل ساگر صاحب مجھے مبارک میں لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں آپ فری لانسر لکھنا شروع کریں. انور کدوایی صاحب اس وقت وہاں پہ چیف رپورٹر ہوا کرتے تھے نوائے وقت میں. تو شامی صاحب انور کدوایی صاحب اور طارق اسماعیل ساگر صاحب کا آپس میں بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے، پکتی نہیں تھی، جیسے اخبارات میں ہوتا ہے.
تو میں جب گیا تو انور قدوائی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی گورنمنٹ کالج۔ اچھا تو صافی بننا ہے؟ میں نے کہا جی صافی بن گیا۔ میگزین میں کہاں پھنس گئے ہو؟ یہ وہ کہاں کرتے ہو؟ زیادہ فکر ہے کہ انہوں نے مجھے کہا مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے کہا جی نہیں میں تو اخبار میں کبھی گیا نہیں، کسی سے ملا نہیں، کوئی واقف نہیں اخبار میں، تو یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب میرے بھائی کے جاننے والے تھے تو یہ لے ہیں۔ اب چھوڑو یار، کام کرنا تو رپورٹنگ میں کرو۔ وہ دن اور اس کے بعد جب وہ جنگ میں بھی آگے، جنگ میں بھی ہمارا ساتھ رہا، جب بھی میرے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، اور ہمیشہ جو انہوں نے نوجوانوں سے جو ہے نا بڑے سلیقے سے، بڑی نفاست سے اور بڑی محبت سے ان کو سمجھایا بھی، بتایا بھی، ہمیشہ گائیڈ کیا۔ اسی طرح میری عبدالقادر حسن صاحب سے صحافی بننے کے بعد ملاقات ہوئی، پہلے تو کوئی نہیں تھی، اخبار کے ذریعے ملاقات تھی، اور جو 2-4 ملاقاتیں ہوئی وہ بھی اسی طرح کی کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی، اور اس میں لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کے کالم پڑھ پڑھ کے بہت کچھ سیکھا۔ اور عبدالقادر حسن صاحب کی جو سب سے اچھی بات تھی جو بطور صحافی میں نے محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی، لیکن کبھی بھی مجھے ان کی زندگی میں تکبر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے، اور چاہے ان سے 50 سال چھوٹا بھی کوئی نوجوان ان سے ملا تو انہوں نے ان سے بہت عزت دی، انتہائی عزت کے ساتھ ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی خاصہ تھا ان سے پچھلی نسل کا کہ وہ چھوٹوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ ہمیں بھی کچھ نہ سیکھے تو کم از کم یہ اس بات ان سے ضرور سیکھنی چاہیے کہ ہم بھی بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آج کی ہماری مجلس میں علی رؤف صاحب، ڈاکٹر شکرہ صدر صاحبہ، نصیر مصطفیٰ صاحب اور سید عقیل انور قدوائی صاحب تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا سید امان انور قدوائی صاحب سے کہ وہ کچھ باتیں ہم سے شیئر کریں جو والد صاحب نے ان کو درس دیا تھا۔ وہ باتیں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک جانی چاہیے اور ہمیں بھی ان باتوں سے آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طرح ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو باوقار لباس پہننے کے ساتھ ساتھ باوقار زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم صدر کائنات۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا اور زیر صاحب کا مشکور ہوں، اور تمام ہمارے جو والد صاحب کے دوست اور ہمارے بزرگ جو آج تشریف لائے، اور تمام حضرات یہاں تشریف لائے، ان سب کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے اس اوکیزن کو آپ اس میں موجود ہوئے اور اپنا اپنا حصہ آپ لوگ ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ وہی بات جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کمشنر صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح کے لوگ اور اس وزاداری کے لوگ اب جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت خال خال رہ گئے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا خاصہ یہی تھا کہ یہ ہو گئے ہمارے بزرگ ہو گئے، ان لوگوں کے اندازے جو ہے پڑھانے کا یا سکھانے کا یہ وہ ہوتا تھا کہ بغیر بتائے اور بغیر بولے یہ آپ کو سکھا دیتے تھے۔ جیسے مجھے اس وقت اس بات پہ سرکار حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ کسی سے انہوں نے ذکر کیا، کسی نے ان سے کہا کہ میں نے کسی علاقے میں جا کے تبلیغ کرنی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں منہ سے کوئی لفظ نہ ادا کرنا پڑے، تو یعنی کہ اپنے عمل سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے بیہیویئر سے آپ جو ہے دوسرے کو تبدیل کریں۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں جو ہمارے سے پچھلی نسل میں موجود تھیں اور اب جو ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو شفقت ہو جائے، اس میں عاجزی ہو جائے، اور ابھی قادر اطہر صاحب سے قادر حسن صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو وہی لفظ جو میں بولنا چاہ رہا تھا وہی انہوں نے ادا کیے کہ وہ فقیر تھے اور ایک درویش لوگ تھے۔ درویش صرف جو تھی وہ ہمارے ان دو بزرگان میں اور قریشی صاحب میں موجود تھی، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر استغنا لے کر آ جاتی ہے، جو آپ کو در در کی ٹھوکروں سے غنی کر دیتی ہے، کسی کی محتاجی نہیں آنے دیتی۔ تو یہ وہ صفات ہے جو ہم سب کو اپنانی چاہیے اور یہی قائم رہتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں۔
میں تو اسی بات سے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آپ سب اس میں زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں تمام کی بات پہ، پروفیشنل کنڈکٹ پہ اور باقی ان کی کنٹریبیوشن پہ. میں نے بحیثیت بیٹی ان کی یہی چیزیں سیکھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے وہ انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے. مزے کی بات یہ کہ آپ سے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی شیئر کروں کہ ان کی ایسی چیزیں ہی ہیں جو ہم نے میراث میں پائی ہیں. تو وہ یہ کہ جب ان کی وفات کے بعد مجھے بھی شوق ہوا ان کی طرح اونچے رکھنے کا، تو میرے ایک دوست نے بختی کسی کہ یار لوگوں کے والد ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے ڈیفینس میں پلاٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی اور چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ بھائی صاحب ان لوگوں کے لیے اونچے چھوڑ حفیظ نے ابھی تک رکھی ہے. بڑی مہربانی، تھینک یو. آپ نے تو بہت پوچھے بس آ جائیں گے تھوڑے دن. ماشاء اللہ آج بھی ہماری اس مجلس میں دو بندے ایسے ہیں کہ جو ہم سب سے بڑے منفرد اور مختلف ہیں. اس میں ایک نام سندر فاؤنڈیشن کے صدر یاسین خان صاحب ہیں، اور دوسرا نام ڈاکٹر مجھے ثاقب صاحب ہیں. ان دونوں بندوں کا اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی محبت تشریف لائے. کل ڈاکٹر صاحب کا جو کالج اور یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ناشتہ رکھا ہے. تو میری بھی آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کل اس تقریب میں جو ہونے جا رہی ہے اس میں ضرور تشریف لے کر جائیں، اور اگر کسی بندے کو ڈرائیور کی ضرورت ہو تو بندہ نچیز حاضر ہے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مجھے ثاقب صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جناب، آپ نے یاد کیا. میں منفرد تو نہیں ہوں، درد مندی کی ایک قدر مشترک ہے میری صحافی اور لکھنے والوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو چند باتیں. پہلی بات تو ابھی کہا گیا کہ لوگ جا رہے ہیں، تو یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے، جو بھی آیا اس کو جانا ہے. پہلے چلے گئے، کچھ بعد میں چلے جائیں گے. وہ جو کسی نے کہا کہ جو وعدہ بیشتے پرانے گوشتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی، تو آب بقائے دوام تو شاید نہ ملے. بہرحال جانے والے چلے گئے، ان کے لیے کلمہ خیر اور ان کے نقوش ہائے قدم پہ چلنا ہمارا فرض ہے. وہ باتیں میں عبدالقادر صاحب کے بارے میں 2003 میں انہوں نے اخوت کے بارے میں ایک بڑا دردمندانہ کالم لکھا، اور اخوت کو متعارف کروانے میں ان کا بڑا کردار تھا. اور وہ جناب مجیب الرحمان شاہی صاحب کے بعد دوسرے صحابی تھے جنہوں نے اخوت کو عطیہ دیا. اور وہ کوئی لاکھوں میں نہیں تھا، ہزاروں میں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی محبت سے آج یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا. اور یہ انہی کے 10,000 روپے تھے جو بڑھتے بڑھتے 122 ارب روپے بن گئے. تو یہ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں ان کو. پھر رائس صاحب سے بھی میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے رپورٹنگ کا تو مشورہ نہیں دیا. انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو کام کر رہے کرتے رہیں. یہ ضرور وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو کیوں چھوڑا. تو ان کی دعائیں بھی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارا ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، امانت، دیانت، صداقت اور محنت میں. تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اعجاز قریشی صاحب کے پہلے بھی یاد کر چکے ہیں، آج پھر ہم ان کو یاد کرنا چاہیے. کل کی تقریب میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ ہم ایک اخوت کالج میں برانچ کر رہے ہیں، تو میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ اگر آپ لوگ تشریف لائیں. وہاں پر آپ ایک نیا منظر دیکھیں گے. وہاں پر پورے پاکستان سے بچے پڑھتے ہیں، اور حکومت سے ایک ڈھیلا لیے بغیر 50 ایکڑ پر ایک بہت بڑا کیمپس تعمیر ہو چکا ہے. اور وہ دراصل یہی عبدالقادر حسن، اعجاز قریشی صاحب اور کلوائی صاحب جیسے لوگوں کی انسپریشن تھی. تو پر ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی اگر سب لوگ وہاں پر تشریف لا سکیں. آخری بات یہ ہے کہ جو وہی پہلی بات کا شاید وضاحت ہو کہ اچھے لوگ چلے جا رہے ہیں،
मुख्तार वसीम साहब ने आवाज़ दोस्त में एक जगह लिखा था कि किसी भी माशरे को बड़े आदमी इनाम के तौर पर दिए जाते हैं और जब उनकी कदर नहीं होती तो सज़ा के तौर पर वापस ले लिए जाते हैं। इस पर गौर कीजिए। ये जो आखिरी जुमला है ये हमारे लिए सबक भी है, नसीहत भी है। डॉक्टर साहब जब डीसी चिन्नौर थे अमान साहब, तो मैं वहाँ गया, विज़िट किया, मुख्तलिफ जो पूरे ज़िले को मैंने विज़िट किया, मैंने कॉलम लिखा। तो वहाँ एक मैंने लाइब्रेरी देखी, वो पुरानी किताबों को उस वक्त डॉक्टर साहब ने वहाँ संभाला जब डीसी चिन्नौर डॉक्टर साहब थे। एक तो इल्म से, अदब से इनका गहरा लगा हुआ है। दूसरा अल्लाह का शुक्र है कि जिस फोरम से आज हम बैठे हैं, अमीन अकेडमी, जो पिछले 4 साल से मैं CSS PMS करवा रहा हूँ गरीब बच्चों और बच्चियों को। तो अब हम मज़ीद प्रोफेशनल तरीके से उसको करना चाह रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से 2 दफ़ा जिक्र किया कि मैंने आपके पास किबला मुजीबुर शामी साहब को, सुहेल बड़ाई साहब को और इरशाद आरफ साहब को लेके आना है। तो उन्होंने 2 दफ़ा पूछा क्यों लेके आना है, मेरे लिए एजाज़ की बात है जब आए। तो मैंने कहा इस तरह आपसे पैसे मांगने आना है हमें। तो मुझे कहते हैं कि यार बड़े बंदे मेरे को ना लेके और ना तो बड़े काम वास्ते लेके आना। तो मकसद ये कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उस काम के लिए बिल्कुल ना लेके, ये छोटा सा आपका काम है, तो आप मेरे पास खुद आ जाए, आप मेरे लिए बेहतर है आप अकेले आना। तो परसों मैं डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुआ रात 8 बजे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हम आपकी एकेडमी को उसी तरह चलाएंगे जिस तरह आप चलाना चाह रहे हैं। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। जहाँ मैंने 500 रुपये से काम शुरू किया था 4 साल पहले, वहाँ मुझे अब डॉक्टर साहब की शफ़क़त से लाखों रुपये इन्होंने देने का ऐलान कर दिया। अब हम आसिफ खान साहब एहतजाजन गुफ्तगू नहीं करने चाहे, उन्होंने मैसेज किया, तो थोड़ी सी हम तरकीब चेंज कर लेते हैं। मैं अपने मेहरबान उस्ताद मुर्शद और वक्त के मुफ्ती साथियों से सुहेल बड़ाई साहब से, मुफ्ती इसलिए क्या है कि मुफ्ती को होता है जो नई बात करता है, कोई राय देता है कि इस पर ये फैसला है। तो ये 3 साल से जो जिहाद अकबर कर रहे हैं, में ये फिक्र ना क्या कि ये बंद कर रहे हैं। डॉक्टर सोना सॉरी आपसे डॉक्टर साहब आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें अपने मुफीद ख्यालात से मुस्तफीद फरमाएं। बहुत शुक्रिया। मुख्तर मैं बात करूँगी कि मैं तो आप सबको देखने के लिए आई और यहाँ पर जितने भी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी एक बात की गई कि बड़े लोग जा रहे हैं, बड़े लोग हमारे दरमियान हैं। और मेरा ये मानना है और तसव्वुफ का असूल भी है कि खैर और शर की शरह एक जैसी रहती है कायनात में। जब खैर पर चलने वाले लोग कम मुतहरिक हो जाते हैं तो हमें फिर मुआशरे में बुराई ज़्यादा नज़र आने लगती है। तो इस किरदार को अपने किरदार तक महदूद नहीं रखना चाहिए। अनवर कलवाई साहब से मेरी कई मुलाकातें हैं। मेरे घर वो खाने पर भी तशरीफ़ लाए थे जब मैं इकबाल टाउन में रहती थी। तो वो जिस तरह अभी उनके बेटे ने कहा कि सूफिया की तरह का उनका चलन था कि बातचीत की बजाय अपने अमल से तबलीग करना, और वो एक चलती फिरती तहजीब का नमूना थे। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी बातों से और उनके लफ्ज़ों से। अब्दुल कादिर हसन से मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं, शायद चंद मुलाकातें होंगी किसी तकरीब में, लेकिन उनके लफ्ज़ों को पढ़ा और उनसे भी सीखा। तो अल्लाह इन दोनों शख्सियात को जन्नतुल फिरदौस की जगह दे। आप सबको सलामत रखिए। बहुत शुक्रिया। वक्त के मुफ्ती जनाब सुहेल बड़ाई साहब से बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। सैयद अनवर कलवाई साहब मेरे सीनियर कलीग रहे, उनके साथ मैंने बहुत अर्सा काम किया और चुनाचे उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। मैं ख़ासकर अब्दुल कादिर हसन साहब और सैयद अनवर कलवाई साहब जो हैं, इनके स्टाइल से बहुत मुतासर था कि उन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी में भी हमेशा एक बहुत आला स्टाइल को मद्देनजर रखा। बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे कादिर हसन साहब भी और सैयद अनवर कलवाई साहब भी। और हमेशा कादिर हसन साहब 5 स्टार होटल्स में बैठते थे,
यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने हमेशा रखी। एक तरह से उन्होंने हमारे प्रोफेशन को इज्जत दी। इसी तरह करवाई साहब जो थे, उनके भी लिबास तराश खराश से वो कोई एक गरीब सहाफ़ी नहीं, ऐसे लगता था कि वो हमारे तबका और बरा से तल्लुक़। और अच्छी बात है कि इसमें आप किसी भी महफिल में जाके शर्मिंदा नहीं होते थे, उनकी वजह से हमारी इज्जत होती थी कि ये उस महफिल का हिस्सा होते थे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पास बैठते थे तो मेरा ख्याल है कि कभी ये नहीं लगता था कि ये कोई गरीब सहाफ़ियों का नुमाइंदा बैठा है। वो ऐसे लगता था जैसे उन्हीं में से कोई एक है, कपड़ों के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से। तो उन्होंने मान बढ़ाया, सहाफ़ियों को बताया कि ये भी तरीका है एक रहने का, कि आप अपनी इज्जत करवाओ और अपने स्टेटस को बढ़ाओ। तो मुझे इनमें ये बात, और बाकी जो इनके यहाँ रवायती एक यूँ समझिए कि मशरक पसंदी थी, तल्लुकात का पास रखना, आना जाना ख्याल रखना, गुफ्तगू कैसे करनी है, किस तरह से बात करनी है, समझाना कैसे है, नाराज़ कैसे होना है, राज़ी कैसे होना है, ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने इनसे सीखी। और वाकई ही वो ऐसी रवायत छोड़ के गए हैं। और जहाँ तक डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब का ने जिस तरह से कारवाने इल्म व अदब का काम किया, उर्दू डाइजेस्ट का काम किया, एक पूरा सिलसिला बनाया, ये हमारे सब के लिए मशअल राह है। और फिर कादर हसन साहब हमारी जो आज की कालम निगारी है, सियासी कालम निगारी, इसके भी यूँ समझिए कि फाउंडर हैं, क्योंकि वो बड़ा सादा ज़ुबान में सियासी मामलात को बेहतर है। और मैंने कदवाई साहब को भी देखा कि वो भी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते थे, आखिरी दम तक उनमें जुस्तजू रही नई बातों को मालूम करने की। जो एक साफ़ी के अंदर जुस्तजू होती है, वो कदवाई साहब में मैं देखता था कि वो उन्हें जो नई बात मालूम होती थी वो लिख भी देते थे, चाहे उसको जितना भी छुपा कर लिखें, लेकिन लिख देते थे। तो ये इन सब हमारे बुजुर्गों की बातें थी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हमारी जो कुछ खूबियां हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी मिसालों से ही हमने सबक सीखा है, और जो खामियां हैं वो हमारी अपनी हैं। ये हमारी सारी नस्ल के रहनुमा थे, इन्हीं से हम सीख के आगे जाएंगे अगर गए तो। बहुत शुक्रिया जी। आज की मजलिस की जो सदारत फरमा रहे हैं हसन निसार साहब, जब इनसे बात हुई कि सदारत आपने फरमानी है और आसिफ खान साहब के जरिए था, तो पता चला कि हसन साहब वैसे आने के लिए तैयार है, लेकिन सदारत के लिए आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो खान साहब जब उनको नाम बताए कि उसमें शामी साहब भी होंगे, और तो उन्होंने कहा यार शामी साहब के होते हुए मैं सदारत नहीं कर सकता, वो मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं। और मेरे लिए सच्ची बात है, इतना वो ठंडक मुझे पहुंची, और मैं रात 10 लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि आजकल पॉजिटिव चीज़ें लोग आम नहीं करते, नेगेटिव ज़्यादा आम करते हैं। तो अब मैं सेकंड लास्ट जो सदारत है कोई ऐसी गल तो सदारत आपकी जिंदगी बहुत कुछ ऊपर की थी, नहीं मैं पहले बोल रहा ना, मैं मेरे फायदा स्टेटस पूरे दोस्तियाँ हैं नहीं। शामी साहब का मेरा रिलेशन बड़ी बात यही पता नहीं इधर हर बंगला पूरा कम ज़्यादा कम नहीं वो इज्जत कर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, हम अपने जिन दो बुजुर्गों और सीनियर्स की याद में जमा हुए हैं, कम अज़ कम मैं इनमें से किसी के साथ अब्दुल कादिर हसन साहब और अनवर किदवाई साहब से मेरा ताल्लुक तो महदूद ही रहा, लेकिन मोहब्बत महदूद नहीं थी, एहतराम महदूद। दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी, अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना अपना स्टाइल, अपना अपना अंदाज और लहजा। तो सबसे खूबसूरत बात
और बहुत ही अजीब बात कि दोनों सकाफती तौर पे पोल्स अपार्ट, जैसे कहते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो कादर हसन साहब को जितना मेरी याद में है, उनका एक टिपिकल सा पहाड़िया, उनका जो बैकग्राउंड था, इसी तरह वो नस्ताली होने की कहा पे थे वैसा। लेकिन इन दोनों बुजुर्गों में कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों को मिलकर एक राहत, आसूदगी, अपनायत और इत्मीनान का एहसास होता था, एक प्रोटेक्शन की एक फीलिंग। अल्लाह शामी साहब को सेहत जिंदगी दे, ही इज प्रोबेबली द ओनली वन मेरा टोटल मेरे करियर में जिनमें मैं 4-6 और लफ्ज़ों का यू फील प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अभी जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे वो बात संग दिलाना बात है, बड़ी सपाट बात है, लेकिन रियलिटी है नहीं करती ये किसी से भी वफा, जिंदगी है ये तवायफ कोई। कदीम शिवाई साहब का है, थोड़ा वल्गर लेकिन है ठीक। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की थी कि लोग जाने के लिए ही आते हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दुख गिला शिकवा सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि दूर दूर तक इन जैसा और कोई दिखाई नहीं देता। ये माशरा हर एतबार से बुरी तरह बदहाल और कंगाल होता जा रहा है, और ये मैं उनके सोग में या उनकी याद में अपने इन दो बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा। मैं गुज़श्ता चंद सालों से मेरा तकिया कलाम है ये जाहिल हैं जो समझते हैं कि इस मुल्क का, मैं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो पता नहीं कोई इकोनॉमिस्ट है कि नहीं, मेरी तो फॉर्मल एजुकेशन है। इस मुल्क का क्राइसिस इक़्तिसादियात नहीं, बर्बाद हो चुकी अखलाकियात है। अच्छा, तो अल्लाह हमारी इज्तिमाई हालत पे रहम फरमाए, और जो बाकी हैं अल्लाह ने अपनी अमान में रखे। इतना ही साया माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बात थी गुफ्तगू से सैकुल्लाह से खुदा आपकी इस मजलिस में तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखसूस अमान अब्दुल भाई साहब का, अब्दुल भाई साहब का और अब्दुल कादिर साहब का। मैं आखिर में गुजारिश करूँगा जनाब नबी फरमान शामी साहब से कि वो इज़हार ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि जाना बसर के साथ साथ ये बाज़ाब्ता तकरीब तो अब्दुल कादिर हसन साहब और अनवर किदवाई साहब की याद में मुनक़िद हो रही है, जिनके सादत सही साहब, सादत एजाज साहब मौजूद हैं, तो डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब की भी याद आई है और मुसलसल आ रही है। हसन निसार साहब, मैंने जब ये उन्होंने बताया कि हसन निसार साहब सदारत फरमाएंगे इस रेफरेंस की, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा पहला इत्तेफाक जिंदगी में कि हसन निसार साहब कभी इस तरह की तकलीफ में सदारत फरमाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। हसन निसार उन लोगों में है उनको मैं पढ़ता हूँ और सीखता हूँ, मेरी इनकी मोहब्बत जो है वो बरसों तक रहती है। इख्तलाफ होता रहा, वादुखाची और तरीके से सोचते हैं और तरीके से सोचते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना बड़ा पाकिस्तान, इतना बड़ा मुसलमान है, इतना मुस्तरब रहता है, जोड़ता है, जगाता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता रहा और इंशाअल्लाह रहेगा। जो सुहेल बड़ाई साहब से है,
एक अनवर किदवाई इससे जब मैं लाहौर आया तो लाहौर में जब अव्वलीन मुलाकात मेरी हुई थी लाहौर में, दोस्ती अव्वलीन दोस्ती वो अब्दुल कादिर हसन। उससे पहले मैं उनसे एक बार मिल चुका था, कराची से आया था, तो यहाँ मुलाकात और दोस्ती मुद्दे पर कर रही। उस जमाने में माल रोड पर जो लॉर्ड्स के सामने हमारी मजलिस शहर, लोग जब जैसे आप जाते हैं ना लिबर्टी की तरफ जाते हैं या किसी और, उस वक्त लोग माल रोड पे आया करते सैर के लिए, शाम को वो गपशप होगी, लॉर्ड्स के बाहर गोगो के सामने वो कुर्सियां लगी होती थी, वहां बैठते चाय पीते। और वहीं अब्दुल कादिर हसन तो चीफ रिपोर्टर थे नवाब, और वहां फिर अनवर किदवाई साहब ने भी आना शुरू कर दिया। नवाब साहब उनको कहते थे, उस वक्त तो अखबार नवीस नहीं थे, और सरदार सादिक साहब होते थे, सरदार सादिक वो थे बड़े दिलचस्प आदमी थे। वो भी कॉलम लिखने लगे ना, कादिर हसन को मैं खैर लिखवाया, माल रोड से माल रोड तक एक कॉलम लिखते थे। बात वो उनका दिन माल रोड पे बसर होता था, कभी इस होटल में कभी उस होटल में। अच्छा, वो कन्वेंशन लीग के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और मैं मोहतरमा फातिमा जना का जब इलेक्शन हो रहा था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की जो स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था। इन्होंने एक दिन बयान दिया जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कि तालिब इल्मों को अयूब खां की हमायत करनी चाहिए। तो मैंने एक बयान दिया कि ये जो कन्वेंशन लीग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो माल रोड पर जब अब्दुल कादिर हसन की मजलिस में मुलाकात उनसे हुई और सलाम अलैकुम, उन्होंने कहा अच्छा तुम वो आदमी हो जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहे थे। तो हमारे हफ्ते में रोजाना नहीं तो 2 दफा 3 दफा माल रोड पे हमारी नशस्त होती बाकायदगी के साथ, अब्दुल कादिर हसन से भी और फिर किदवाई से भी। और किदवाई साहब फिर उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी, कादिर हसन को नवाब में लेकर रिपोर्टर बना दी, फिर वो चीफ रिपोर्टर हुए। और कादिर हसन, उस वक्त कादिर हसन का जो कॉलम था तुमको तूती बोलता था, कॉलम नाम ही था कादिर हसन का। अब ये दिलचस्प बात ये हुई कि जब जंग में अब्दुल कादिर हसन जंग में चले गए, अब ढूंढिया पड़ी कि को कॉलम निगार ढूंढो कहीं से, कॉलम निगार भी ऐसा जो राइटिस्ट हो, क्योंकि नवाब का पेट तो तभी बढ़ता था। उस वक्त तो कॉलम निगार ऐसे तो थे नहीं। अब तो मेरे दफ्तर में जो आदमी आता है लड़का नया, क्या वो क्या है कि जी मैं कॉलम लिखता, कॉलम लिख के ले आता है। उस जमाने में तो कॉलम लिखना बड़ी बात थी। हुसैन साहब का कॉलम भी बाद में शुरू हुआ है, नहीं पहले वीकली में आता था। अच्छा, अब हुआ ये, अब ढूंढने लगे नवाब वक्त वाले कि कोई कॉलम निकाल लो जो अब्दुल कादिर हसन का कलाम। और अब्दुल कादिर हसन का जो कॉलम है वो अब्दुल कादिर हसन के कॉलम के बगैर बात तो वीरान है। अब वो ढूंढ वजीर निजामी साहब मुझे कहने लगे तुम कॉलम शुरू कर दो। मैंने कहा कॉलम शुरू कर दो, मैंने तो कभी लिखा ही नहीं कॉलम। वो शुरू तो करो, मैं कैसे करूँ, मुझे तो लिखना नहीं आता। अच्छा, उसमें अब गौर व शुरू हुआ, नाम क्या हो, कॉलम लिखना है, मुसीबत पड़ गई, कॉलम लिखे कैसे लिखेंगे। तो अब बशीर अहमद अरशद मरहूम जो नवाब के इलाके नवीस थे, बड़े दोस्त थे हमारे, कादिर हसन के
उन्होंने मुझे फोन किया, कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही जलसा है। तो मेरी दफ्तर में आप तौर पे लोग आते रहते थे, बैठे रहते थे, तो मेरे मुंह से निकला वही जो करते हैं जलसा है आप। कहने लगे यही कानून को अनुमान नहीं हो जाए क्या? तो जलसा आम कानून को अनुमान हो गया, कानून लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो मेरा असल में मुझे कॉलम वालम तो नहीं आता था, लेकिन क्योंकि राइटिस्टों में थोड़ा बहुत सिक्का हमारा भी चलता था, तो इसलिए कहा कि कुछ ना कुछ सौदा बेच लेंगे। दोबारा फिर कॉलम निकाली शुरू हो गई। तो कादर हसन जो है, जैसा कि बताया कि भाई आलम दीन बनाना चाहते थे इनको। अब आलम दीन बनने के लिए लाहौर आए थे, और किसी स्कूल में तो नहीं पढ़े, लेकिन खुद एक यूनिवर्सिटी बन गए। देखिए, उन्होंने जो इक्तसाब फैज किया ना, उन्होंने मसूद आलम नदवी साहब मरहूम उनसे पढ़ा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब जामिया अशरफिया के उनसे पढ़ा, और अबू दाऊद गजनवी साहब से पढ़ा। अरबी तो वो वहां से सीख के आए थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो अरबी अच्छी खासी उनकी इस्तेदाद उन्होंने हासिल कर ली थी। जब यहां पहुंचे तो फिर मुख्तलिफ उलमा से उन्होंने हदीस और फिक़ा और कुरान पढ़ा, और मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब के भी दर्स जो थे वो अटेंड करते रहे, और इस तरीके से इक्तसाब फैज उनसे किया। और फिर मौलाना मसूद आलम नदवी मरहूम जो हैं, उनकी सोहबत में उनके साथ काम किया, तो उनको फिर एक उनका जेवर बना दिया उस सोने का। मौलाना मसूद आलम नदवी वो थे जो चंद लोगों में से थे बर्रे सगीर के, जो अरबी जो थे, जिन पे अहले अरब जो है वो रश्क करते। मौलाना मसूद आलम नदवी मरहूम और मौलाना अबुल हसन नदवी मरहूम। तो मसूद आलम नदवी मरहूम जो थे वो जमात इस्लामी के दारुल उलूमा के इंचार्ज हो गए। अब अब्दुल कादिर हसन अखबार नवीस नवाए वक्त में उन्होंने चिट्ठी लिख दी जनाब उमैद नज़ामी, चिट्ठी लिखी उमैद नज़ामी। अच्छा, आप ये अजब लोग थे, ये बड़े लोग, आप उनको चिट्ठी लिखते थे, उनका जवाब आता था। मेरा ख्याल आज तक कोई ऐसा खत नहीं होगा जिसका जवाब न दिया होगा। और कायदे आज़म की बड़ी एक खत जो है उसका जवाब, जब चंदा मांगा मुस्लिम लीग के लिए, तो 2 आने 1 आना, हर मनी ऑर्डर पर दस्तखत अपने करते थे वजूद की। तो कादिर हसन जो है उनको जनाब नवाए वक्त ने अप्रेंटिस रख लिए, वो नवाए पे हो गए उमैद नज़ामी साहब। वहां वो अप्रेंटिस थे, इतनी देर में मालूम हुआ कि लैला नहार जो है, पता नहीं उसी जमाने में निकला होगा या कुछ होगा, कुछ मुलाकात हुई होगी, इधर उधर को पैसे पुसे भी अच्छे मिलते थे वहां, तो उन्होंने कहा लैला नहार चले जाना चाहिए। तो वो लैला नहार में उनको जॉब मिल गई। लैला नहार में सिफ्ते हसन एडिटर थे, फैज साहब पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर थे रोस्ट, मगर बैठते लैला, जो दोस्ती थी सिफ्ते हसन थे, बैठते उसी दफ्तर में थे लैला नहार। इस तरीके से अब्दुल कादिर हसन उनकी सोबत में इस्तेफादा शुरू किया। जब माशाल्लाह लगा, फिर टेक ओवर हो गया उस अदारे का, फिर कादिर हसन ने उसको तर्क की छोड़ा और हमीद नज़ामी को चिट्ठी लिखी कि मैं वापस आना चाहता हूं। अब जिसने भुना उन्होंने कहा पागलो, हमीद नज़ामी का अदारा छोड़ के गए, वो तो तुम्हें सीढ़ियां नहीं चढ़ने देगा।
जब चिट्ठी लिखी, अमीन निजामी ने बुलाया, पता कितनी तनख्वाह लेते थे वहाँ? 300 कुछ रुपये देते थे। अहमद महमूद के पास भेज दिया और दोबारा ये उनके टैलेंट का एतराफ था। तो फिर कादर हसन, अब ये जो है अनवर किदवाई साहब अखबार नवीस के तौर पर ना, तो मेरे नजदीक उसी दरख्त का एक फल है। कादर हसन ही इनको रिपोर्टर बनाया, इनको, फिर वो अपनी चीफ रिपोर्टर बन गए। फिर दानिशवर आखिर खानदान, बड़ा खानदान, उसके चश्मो चराग थे, एक अपनी तहजीब जो थी हमारी उसका नमूना थे, तहरीक पाकिस्तान से जुड़े हुए, उनसे बात करके लुत्फ आता, जिनके मुंह से फूल झड़ते। बहरहाल, तो अब्दुल कादिर हसन जो है, ये जो सियासी कालम निगारी है उसके तो वो इमाम है। और हकीकत ये है कि वो फिर एक जमाना तो ऐसा गुजरा है कि अब्दुल कादिर हसन के कालम का ये चर्चा था कि जनरल जियाउल हक को किसी ने पट्टी पढ़ाई, अखबार चलाना है इमरोज, तो कादिर हसन को ले जाओ कालम के पढ़ाओ। इमरोज का चीफ एडिटर बना के मजबूर किया इनको कि वहां आके। बड़ी दिलचस्प कहानी। अब जंग से वहां गए थे, अब जंग वालों के लिए मुश्किल हो गई। फिर वो हमजाद कादिर हसन का एक पैदा हुआ, वो वहां कालम छपता रहा, वो वहां कालम छपता रहा। दो कालम लिखते हैं, हमजाद का, हमजाद कादिर हसन। तो आप देखें, और जिंदगी गुजारी एक कनात के साथ, इज्जत के साथ। अब ये जो अतर है, मैं ख्याल नवीद मालिक ले गया था, नवीद मालिक जो है इनसे, इनके बारे में दरखास्त इनकी लिख के ले गया। मैंने बताया नहीं था अबू को, उनको पता ही नहीं था। नवीद मालिक बड़े साहब होते थे, एक ऐसे एक पीपल्स पार्टी के एक जाले थे अपनी तरफ के, वो भी बाकी को पता नहीं कहते हो, पर अपनी एक जगह अजीब शख्स थे वो भी। तो वो ले गए दरखास्त और बेनजीर को कहा जी कि इनको कादिर हसन का बेटा है। तो बेनजीर ने कहा यार कादिर हसन ने तो हमारा इतना कोई काम नहीं किया, लेकिन हम उसका काम कर देंगे। बिल्कुल ऐसी पिया ही मैं इनको, और उसने तो पिया ही, अब तक पिया ही में। कोई और होता तो पता नहीं कहां पहुंचा देते। यहां तो चीफ जस्टिस जो थे उनके बेटे जनाब डॉक्टर हो गए, FIU में भर्ती हो गए और इंडक्शन हो गई उनकी। तो ये तो इस वक्त जो है मेहनत कमिश्नर लाहौर होते। तो कादिर हसन ने जो एक काबिल रश्क जिंदगी गुजारी, हमारे अनवर किदवाई जो हैं उन्होंने भी एक काबिल रश्क अपनी हद में। वुसअत आ गई वसाइल में, अभी तो सब्र कर सकते थे। हसन ने साथ साथ तो माशाल्लाह अब अरबपति हैं। देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के, मैं तो पति भी गुजारे। अब तो यानी आप यकीन करें कि हसन निसार जो है अगर किसी और मुआशरे में हो तो इसको हर रोज सोने में तोला जाए। अब आप ये देखें, ना कोई लालच, मैं इनको भी देखा, मैं बेनियाज हर चीज, बेनियाज वो भी। और वो जो वो कादिर हसन तो भाई यार इतने पैसे मिल जाते हैं, संभाले कैसे? ये मुश्किल पड़ी हुई थी यार, ये और कभी तसव्वुर नहीं किया था। मैंने एक दिन मीर शकील रहमान से कहा यार मुझे पता होता कि कॉलम निगारी में इतने पैसे मिलते हैं
तो मैं अखबार के पंगे में क्यों पड़ता? उन्होंने कहा तुम अब आ जाओ। अब बात यह है, वो मेरे पीछे पीछे पड़े मीर शकीलुर रहमान, तो वो एक लेटर जो है साइन करके कॉन्ट्रैक्ट और जगह खाली छोड़ दी उसमें पैसों और मेरे घर भेज दिया। वो अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने वापस नहीं भेजा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ने फिर ये करम किया। कभी तसव्वुर कर सकते थे कि कॉलम निगार जो है वो इज्जत की जिंदगी गुजारेगा? ये इनकलाब आया पाकिस्तान में कि, और ये इंडस्ट्री जंग की इशाअत के बाद और फिर एक्सप्रेस की इशाअत के बाद ये इनकलाब आया कि जो कॉलम निगार हैं लाखों रुपए में तो उनको मिलने लगा मशाला उनकी वर्थ के मुताबिक। और एक कॉलम निगार जो है अपनी कॉलम की कमाई से आप यानी इज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो गए। तो अब्दुल कादिर हसन ने यहाँ ये कब्रिस्तान के करीब एक मकान छोटा सा बनाया था, पता नहीं अब भी है कि चला कि वो मकान बनाया, वही रहे अरसा दराज तक और फिर डिफेंस चले गए। और अब आखिरी जो उनका था यानी एक वो जिंदगी में ही ना हकीकत ये कि वो उनकी मजलिस खत्म हो गई थी। यानी मैंने देखा तब से बात की, एक दफा हम मिलने भी गए, कोई इतने ज्यादा हौसला अफजाई नहीं की हमारी कि भाई आदमी एक मगर खाना नशीं और लेकिन ये कि लिख रहे हैं आखिर दम तक, यानी मरने से एक दिन पहले कॉलम लिखा और अल्लाह जानता है भाई, उसके राज वही जानता है। ये जो हमारे सरफराज शाह साहब हैं, मैं कहते हैं अब्दुल कादिर हसन के कितने कारनामे, मैंने कहा 2 कारनामे हैं। क्या? एक तो मैंने कहा ये जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर का इतराफ, दूसरा जनाब हमारे सरफराज शाह साहब का था। सरफराज शाह साहब से हम वाकिफ हुए अब्दुल कादिर हसन की वजह से। ये मदीना गए और वहां से कुछ ऐसी बात हुई कि कादिर हसन को बुलाया तो पता नहीं कादिर हसन कहां से कहां पहुंचे। मरने से 2 दिन पहले फिर वाकया अपने कॉलम में लिखा। हसन रोजा रसूल पर अब्दुल कादिर हसन हाजिर हुए, पता नहीं क्या फरियाद की हो और क्या बात की होगी। चंद रोज गुजरे कि सरफराज शाह साहब का पैगाम आया। अहमद बशीर साहब, अहमद बशीर जो थे वो उनके इज्जतमंदों में थे। अहमद बशीर उनको ले गए उनसे मिलाने के लिए और सरफराज शाह साहब ने कहा आपने रोजा रसूल पर जो गुजारिशात पेश की थी वो कबूल कर ली गई हैं, मुझे कहा गया मैं आपको बशारत देता हूं। अब कादिर हसन वो कादिर हसन नहीं था। वो कादिर हसन उसकी दुआ और उसकी आरज़ू रोज़ा रसूल में कबूल कर ली गई बारगाह रसूल और उसको बशारत दे दी गई। ऐसी जिंदगी गुजारी, रुखसत तो हम सब ने हो जाना है। वही शख्स यहां नहीं रहा, ना रहेगा। जैसे उमर ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। उमर फारूक जो है वो अगर किसी ने कहा तो मैं उसका सर कर। अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने कहा ये सब जो लोग दुनिया में आए हैं उन्होंने यहाँ से रुखसत किया और वो भी अल्लाह के बंदे थे और रसूल थे। तो रुखसत तो सबने होना है। आज वो कल हमारी बारी है, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजार के गए, अच्छी यादें छोड़ गए, अच्छी मिसाल बन गए,
हम उनको जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे भाई साहब पर भी रहमत करे, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर इजाज़त कुरैशी पर भी रहमत करे, और अब्दुल कादिर हसन की तो बात ही क्या है, उसको तो कबूलियत का दर्जा जिंदगी में अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा आमर खाकवानी साहब से कि उन्होंने बात तो कर ली, जो बात बोलने थोड़ी सी बात कर लें। दूसरी शरारत तो बात नहीं है, इतनी अच्छी एक दफ़ा 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़े और तसीब मुस्तफ़ा दुआ पढ़ना। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।